Welcome dear students, this lecture is based on reproduction in lower and higher plants. Reproduction is the process of formation of new life from pre-existing life, right? So reproduction may be asexual as well as sexual. Initially, we will discuss about asexual methods of reproduction in lower and higher plants. So asexual reproduction simply means it do not involve gametes, right? It do not involve gametes. No need of production of gametes in the fusion, right? So it is uniparental type of reproduction. Only single parent is essential. And it produces clones, means similar individual, okay, similar organism. By asexual method, we get exactly similar organism as a product, and that is called clone, and the method is said to be cloning method, right? So it involves division called mitosis. Meiosis does not occur right here in this process. Asexual reproduction is characterized by mitosis type of cell division. That's how it fails to bring some variations, okay, needed for evolution. That's how we can simply say when plant have to divide without any variations, in absence of flowers, we can say they may use such method of reproduction by their leaves, by the stem, by the roots, okay, and they may produce new plant as well by simple division, asexual or mitosis. So asexual method is formation of clone, simply we can say. So initially we had to study some methods by which organisms can reproduce. Number one is fragmentation. Okay, so let's discuss about this method of asexual reproduction called fragmentation. So here fragmentation is commonly found in Spirogyra. You can observe fragmentation in Spirogyra, an algae, okay. Spirogyra algae आप सभी ने देखा होगा, ये इस तरह का एक फिलामेंट होता है, ठीक है, ये इस तरह का एक फिलामेंट है और इस फिलामेंट में आपको दिखाई देंगे बहुत सारे सेल्स, ओके, दैट इज फिलामेंटस एल्गी स्पायरोगायरा हैविंग सच काइंड ऑफ सेल्स इन इट. तो यहाँ पे इस टाइप के आप सेल्स दिखा सकते हो बहुत सारे, राइट, लाइक दिस. So these algal cells form a filament from small fragments like this, and this algae is also characterized by presence of spiral chloroplast like this. You can observe here spirally arranged chloroplast, and those chloroplast shows presence of pyrenoids as well. इसमें आपको स्पेशल लिपिड रिजर्व रहने वाले पायरेनॉइड्स भी दिखाई देंगे. तो इस तरह का एल्गी आप सभी ने देखा हुआ है, ओके, दैट इज फिलामेंटस एल्गी लाइक दिस, और इसमें होते हैं पायरेनॉइड्स, ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे पायरेनॉइड्स बहुत सारे, और इसमें होते हैं न्यूक्लिया एज वेल, ठीक है, इसके न्यूक्लियस भी यहाँ आप दिखा सकते हो. तो ये एक फिलामेंट है इस स्पायरोगायरा का, जहाँ पे आपको एक खास टाइप का क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, ठीक है, और उसकी स्पेशलिटी है उसमें रहने वाले पायरेनॉइड्स. सो व्हाट हैपेंस राइट हियर इन केस ऑफ सम एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है, एक्सीडेंट से इंजरी से टूट सकता है, फिलामेंट बीच से टूट जाएगा और इसके आपको मिल जाएंगे दो डिफरेंट फ्रेगमेंट, ठीक है. ये छोटा जो फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, इससे ब्रेक होने के बाद जो फ्रेगमेंट मिलेगा उससे आपको फिर से एक नया फिलामेंट मिलेगा, राइट. सो दैट स्मॉल ब्रोकन फ्रेगमेंट ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है, ये सेपरेट हो चुका है. तो जब ये फ्रेगमेंट यहाँ से सेपरेट होगा तो उससे आपको फिर से एक नया फिलामेंट मिलेगा, ठीक है ना, न्यू फिलामेंट फ्रॉम अ फ्रेगमेंट. ये एक फ्रेगमेंट टूटा, इससे भी आपको एक नया फिलामेंट मिलेगा. दैट्स हाउ स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है.
तो आप देख सकते हो ये एल्गी हैं, ये पानी में बहुत स्ट्रांगली बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, और मेथड का नाम है fragmentation. So how can I define fragmentation? Fragmentation is a process of formation of new organism by a small parental broken fragment. उस छोटे से फ्रेगमेंट से अगर हमें नया फिलामेंट मिल जाए तो यही तो है फ्रेगमेंटेशन. यू टू सिंपली रिमेंबर द नेम स्पायरोगाइना. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है. राइट. देन अनदर एग्जाम्पल वी हैव बडिंग. दूसरा एसेक्सुअल मेथड का आइडियल एग्जाम्पल होता है बडिंग. बडिंग इज फाउंड इन ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विस, ईस्ट, बेकोर्स ईस्ट, बेकरी में यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं हम डिफरेंट तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, और ये काफ़ी पॉपुलर फंगस है, सिंगल सेलुलर फंगस ईस्ट. तो इस तरह ईस्ट में अगर आप देखो, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उसका फंगल सेल वॉल है. ओके, पैचिनस, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ साइटोप्लाज्मिक इंग्रेडिएंट्स है. ओके, यूकैरियोटिक टिपिकल सेल ईस्ट सेल. इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा बर्ड बॉर्न होगा लैटरली लाइक दिस, एंड दैट बर्ड इज इन कंटिन्यूएशन विद its cell wall cytoplasmic content. Okay, slowly gradually that particular bird grows. आप देख सकते हो वो बर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है, और उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. सो इस न्यूक्लियस को डिवाइड कर देते हैं और इसमें शिफ्ट कर देते हैं एक न्यूक्लियस इस बर्ड में, राइट, लाइक दिस. Okay, now there is a separation or sharing of cytoplasm as well, and ultimately that particular process leads to budding. तो यहाँ पे आप देखिए ये जो lateral bud था, small bulging, that may now converted into well isolated new yeast cell. तो यहाँ पे आपको एक नया complete yeast cell ही मिल जाएगा like this, so that can able to form a new bird like this, and that's how process continue, and this process is called budding. तो ये budding होती है ईस्ट में. मल्टीसेलर में भी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम्पल्स लाइक हाइड्रा. ठीक है, बट यहाँ पे हमने पढ़ा है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ईस्ट में. ठीक है, तो बडिंग क्या होता है? बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल लैटरल बर्ड. और ये बर्ड एक छोटा बल्जिंग है, और ये स्पेशल एबिलिटी होता है कुछ सेल्स का, जैसे कि ईस्ट. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस, और जो नया न्यूक्लियस बना वो उसमें ट्रांसफ़र होता है विद सम सॉर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड देन इट behave its life independently. ठीक है ना, after little bit maturity, and then it can able to form new bud. Okay, then bud and bud, that's how it is said to be budding process commonly found in yeast. तो ये भी तो एक वे है, मेथड है रिप्रोडक्शन का. इसी तरह हमारे पास एक तीसरा भी पॉसिबिलिटी बन जाता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये क्या मेथड है? स्पोर फॉर्मेशन. सो व्हाट हैपेंस हियर इन स्पोर फॉर्मेशन? लेट्स सी. If you think about some algal structures, like अगर आप देखो इस टाइप का algal structure क्लैमिडोमोनास. ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे क्लैमिडोमोनास. तो ये जो स्ट्रक्चर है क्लैमिडोमोनास, इसके ऊपर एक सिस्ट फॉर्म हो गया अभी, और ये सिस्ट जब ब्रेक होगा तब इससे बहुत सारे डॉटर सेल्स बाहर निकलेंगे क्लैमिडोमोनास के विद फ्लैजिली. ठीक है, तो इसके अंदर, ये सिस्ट के अंदर वेल प्रोटेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ये फॉर्म होते हैं इंटरनली, जस्ट लाइक अमीबा इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन. ठीक है, तो अंदर की तरफ बहुत सारे एल्गल सेल्स आप दिखा सकते हो लाइक दिस विथ सम फ्लैजिलेट आउटग्रोथ लाइक दिस. ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल्स, और ये बायोफ्लैजिलेट जो एल्गल सेल्स आप अंदर की तरफ देख रहे हो उसका नाम है क्लैमिडोमोनास. ओके, सो जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे लाइक दिस, और ये एक इंडिपेंडेंट सेल होगा, उसका नाम है क्लैमिडोमोनास.
एल्गी होती है, ठीक है ना। तो क्लैमिडोमोनास में ये स्पोर्स जो तैयार होते हैं आप देख रहे हो, इन स्पोर्स का नाम है जू स्पोर्स। क्या नाम है? जू स्पोर्स। ओके, दे आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। इसका मतलब है कि वो मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव इन वाटर। वो मोबाइल या मोटाइल स्पोर्स होते हैं और जब भी ये स्पोर्स फॉर्म होंगे तो इसी से आपको नया अलग अलग स्ट्रक्चर फिर से मिलेगा। दैट्स हाउ वी कैन से स्पोर फॉर्मेशन एज यू कैन सी इन फंगस, ठीक है, लाइक राइजोपस। कोई भी फंगस देख लीजिए आप, चाहे वो मशरूम हो, ठीक है, चाहे वो मोल्ड हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फंगस हो, उसमें आपको स्पोर फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह एल्गी भी स्पोर फॉर्म करते हैं। ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं, उधर नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल होते हैं। यहाँ पे फ्लैजिलेटेड आउटग्रोथ जो है ये विप लाइक मूवमेंट करेगी, जिससे कि थोड़ा बहुत मूवमेंट इनको मिल सकता है। जू स्पोर्स, दैट्स हाउ कॉल्ड मोटाइल स्पोर्स। और इससे रिप्रोडक्शन ये गारंटीड हो जाएगा ऑफ कोर्स, इसीलिए एक मेथड है, किधर भी गैमेट्स नहीं है, ठीक है ना, एसेक्सुअल है पूरी तरह। तो ये भी मेथड स्पोर फॉर्मेशन आपको एल्गी में देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक स्पायरोगारा में हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन, और क्लैमिडोमोनास में हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन। जू स्पोर्स आर फॉर्म इन एल्गी लाइक क्लैमिडोमोनास। कुछ और मेथड्स भी यहाँ होते हैं, जैसे कि आपको पता है जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। जेम्यूल फॉर्मेशन ये कहाँ होता है? सिर्फ एग्जांपल्स यहाँ देखने हैं हमें। जेम्यूल फॉर्मेशन ये आपको स्पॉन्जेस में दिखाई देगा, स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन, ठीक है ना। स्पॉन्जेस पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं जो जेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं। जेम्यूल ये खास इंसिस्टेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आर्कियोसाइट्स होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, फूड है, वाटर है इन एबंडेंस, देन दैट सिस्ट ब्रेक ओपन और बाहर निकलते हैं बहुत सारे आर्कियोसाइट्स फ्रॉम माइक्रोपाइल, और उससे आपको मिल जाते हैं नए साइकॉन। दैट्स ग्रेट अबाउट पोरीफेरा। तो उसमें जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, राइट। प्रोसेस को आप उसी तरह कह सकते हो। कुछ कोनिडिया फॉर्म होते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन, और ये कोनिडिया फॉर्मेशन आपको फिर से फंगस में दिखाई देगा लाइक पेनिसिलियम। फिर आप एक और कॉमन मेथड से फैमिलियर हो, दैट इज़ बाइनरी फिशन, ठीक है ना। बाइनरी फिशन काफ़ी कॉमन है, आप सब जानते हो। और बाइनरी फिशन इस मेथड में आइडियल एग्जाम्पल होता है अमीबा। अमीबा, राइट, जो एक इरेगुलरली शेप सेल है, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म शेयर होगा, और कोई भी प्लेन फिक्स नहीं है, वेदर इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, it is not perfectly determined, and that's what is said to be irregular binary fission. Example amoeba, कभी ये फिक्स होता है ट्रांसवर्स फॉर्म में ही होता है, लाइक पैरामीशियम, ओके, कभी ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है, एग्जाम्पल यूग्लिना, राइट। सो बाइनरी फिशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा सिंपल बाइनरी फिशन, लाइक पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एंड लाइक यूग्लिना लॉन्गिट्यूडिनल, उसमें आपको प्लेन दिखाई देगा डिवीजन का, ठीक है ना। तो उसको आप कह सकते हो वो वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं। तो इसका एग्जांपल्स हुए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, राइट। तो ये जो कुछ हमने देखा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑफ लोअर एंड हायर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आप देख सकते हो लोअर एंड हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो है ये अलग अलग मेथड से होगा। उसमें सेक्सुअल मेथड हम डील कर रहे हैं एज इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारे मेन टाइटल पे, दैट इज़ नथिंग बट reproduction by gametes, that is sexual reproduction, and of course superb structure is involved here in angiosperm called flower. Okay, so आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ लेना है इंट्रोडक्शन के तौर पे, राइट। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे वेजिटेटिव, और उसके बाद फिर सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सम आर्टिफिशियल मेथड्स आर ऑल्सो देयर लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर जिसको आप कहते हो, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।